हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी. दिस इज द फिफ्थ यूनिट ऑफ दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. फर्स्टली वी हैव टू सी वर्क डन. The work is said to be done when a force applied on the body displaces the body through a certain distance in the direction of force is nothing but the work done. For example, let F be the force acting on that body which makes the angle theta with horizontal. Means this F1 is acting on that block or body. This force is inclined force having the angle theta. Then it resolves into the two components. Horizontal component is F cos theta and vertical component is F sin theta. Due to that applying the force on that block, it replaces or displaces some another point having displacement or distance s. Then what is work done? Work done is nothing but the F cos theta into s. Why F cos theta? Because the force is applied along the horizontal direction and the body is also displaced in horizontal direction. That's why we are taking the horizontal component of that force is F cos theta. That's why W equal to F cos theta into S. S is nothing but the displacement. Then we have to write that equation. We have to say that equation F into S. F का हम जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेंगे और इनटू डिस्प्लेसमेंट. देन इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी लाइक F1, F2, F3 to that Fn acting on that body, it shifted from R1 to R2 means its position. Then what is work done? Work done is nothing but the it is a multiplication of force into that distance or displacement. तो displacement कैसा आएगा? Final position minus initial position R2 minus R1. Next we have to see nature of work. Means जो work है वो हम positive कब लेंगे, negative कब लेंगे वो. ये first देखेंगे positive work. If external force or its component is parallel to that displacement, then the work is positive work. For example, this block having the which acting on that body, its F force is acting on that body, F inclined force है. तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में. बॉडी कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है? इट इज इन अ राइट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए हम वर्क जो है वो कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वर्क. नेक्स्ट, बट इसके लिए क्या कंडीशन है? वो जो फोर्स का जो एंगल है थीटा, इट इज लेस देन 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, when a spring is stretched, work done by external force is positive. ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्ट्रेच किया हमने राइट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग कैसे मूव हो रही है? इट इज इन द राइट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन है, इसलिए क्या आएगा? वर्क इज पॉजिटिव. नेक्स्ट, निगेटिव वर्क कब आएगा? इफ द एक्सटर्नल फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज अपोजिट टू दैट डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज निगेटिव वर्क. फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, तब क्या होगा? इट इज वी आर कंसिडर एज अ निगेटिव फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, if we are applying the force on that block but body is displaced in a right direction, but force having the direction of having left direction, इसकी जो डायरेक्शन है दोनों की भी it is opposite to each other. That's why work is considered as a negative. तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? पॉजिटिव वर्क कब आता है? इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. तो नेगेटिव वर्क कब आएगा? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, when a body is made to slide over a rough surface. ये बॉडी है, स्लाइड कहाँ पे हो रही है? रफ सरफेस पे.
तो रफ सरफेस पे स्लाइड हो रही है, तब क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा. इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट मोशन. मोशन राइट साइड में है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में है, तो इट इज अपोजिट टू ईच अदर. दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज अ वर्क एज अ नेगेटिव. नेक्स्ट वी हैव टू सी जीरो वर्क. वर्क की जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो कब आएगा? यस, इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज नॉर्मल टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, when a coolie travels on a horizontal platform with a load on his head, then work done against the gravity by the coolie is zero. ट्रैवल कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वर्क डन, ग्रेविटी क्या है? इट इज ग्रेविटी का कैसे डेवलप होती है और एक्ट होती है? इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज परपेंडिकुलर टू दैट ईच अदर. दैट्स व्हाई वर्क डन बाय दैट कूली इज जीरो. सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, द वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज जीरो. अब बॉडी मूव कैसे हो रही है? सर्कुलर डायरेक्शन में मूव हो रही है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है? इट इज अलोंग दैट टैंजेंशियल. तो ये मूव हो रही है सर्कुलर डायरेक्शन में, ये टैंजेंशियल है, इट इज नॉर्मल टू ईच अदर. दैट्स इट इज ऑलवेज जीरो. सेकेंड कंडीशन क्या है जीरो वर्क के लिए? इफ देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वर्क का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट नहीं है मीन्स क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा. तो जीरो इंटू फोर्स इज जीरो फोर्स, जीरो वर्क. फॉर एग्जाम्पल, when a person tries to display wall or heavy stone by applying a force, then it does not move. The work done is zero. आप वॉल को क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वॉल कुछ डिस्प्लेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो तब क्या होगा? इट इज जीरो वर्क डन. नेक्स्ट, इफ देयर इज अ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. अगर फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसलिए वर्क जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इन अ फ्री स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, फ्री प्रोजेक्टाइल है, वो फ्री स्पेस में क्या हो रहा है? मूव हो रहा है. और कौन सा तो भी एक रॉकेट है, वो मूव हो रहा है, फ्रीली मूव हो रहा है, तो उसमें कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं. इट इज इन मूव इन अ फ्री स्पेस. देयर इज नो एनी force acting on that. That's why work done is zero. Next we have to see नॉन यूनिफॉर्म. अगर फोर्स है, हमने अब यूनिफॉर्मली फोर्स देखा, एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो डिस्प्ले हो रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है, तब हम क्या लेंगे? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस. मीन्स वॉट? पूरा वर्क डन है उसका एडिशन, और उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन, और डिस्प्लेसमेंट का पूरा जो है वो एडिशन लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बॉडी इज मूव फ्रॉम ए टू बी. ओके, क्यों मूव हो रही है? क्योंकि हम फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं. इट इज एफ. तो एफ हैविंग विथ व्हाट? विथ एंगल थीटा. तो अब देखो यहाँ पे ए टू बी जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अलोंग दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है. मीन्स डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस फोर्स का, वो क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द ए टू बी, देन वर्क डन इज डब्ल्यू इक्वल टू ए टू बी एफ डी एस इक्वल टू ए टू बी. इंटीग्रेशन लेंगे हम, क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ले रहे हैं हम, तो उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे. एफ कॉस थीटा इंटू डी एस. तो वर्क डन का यूनिट क्या है? यस, एसआई यूनिट इज, अब देखो एसआई यूनिट वर्क, इट इज नथिंग बट दी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर. तो न्यूटन मीटर, उसको जूल भी कहते हैं हम. सीजीएस यूनिट क्या है? अर्क और डाइन सेंटीमीटर. 1 joule equal to 10⁷ arc. Next we have to see the graph between what? Between the displacement and force.
अब देखो, लेट बॉडी मूव्स, इनिशियल पोजिशन इज r1 एंड फोर्स F इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, देन इट डिस्प्लेस टू दी R2 ये नीचे है। ये देखो बॉडी है, बॉडी क्या हुई, मूव्स हुई, ये फोर्स इट इज अलोंग द y डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द x डायरेक्शन। तो फोर्स इंक्रीज किया तो देखो डिस्प्लेसमेंट k टू a, फिर डिस्प्लेस हो रहा है a टू l, फिर डिस्प्लेस हो रहा है वो बॉडी l टू e, मीन्स फाइनली वो कैसे मूव हो रहा है, इट इज r1 टू r2। देन कंसिडर दैट स्मॉल स्ट्रिप हैविंग द विड्थ dr, देन व्हाट इज वर्क डन इज गिवन बाय w इक्वल टू r1 टू r2 dw। स्मॉल स्ट्रिप लिया हमने, तो स्मॉल स्ट्रिप से हम पूरा आपको जो एरिया है वो पूरा कवर करना है, तो उसका समेशन लेना पड़ेगा, इसलिए इट इज dw। नेक्स्ट, तो dw क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू dr मीन्स व्हाट, वर्क डन क्या है, एरिया अंडर दैट कर्व KALE जो दिया है ना, वो एरिया अंडर दैट कर्व है। यस, assume that the force and displacement have the same direction है, if not then take the F cos theta into R। अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो हम उसका फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इट इज ऑल्सो दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वी हैव टू सी एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, इट इज कैपेसिटी डूइंग द वर्क। द एनर्जी ऑफ बॉडी इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, जो मैग्नीट्यूड है वर्क का इज द एनर्जी। यस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसलिए इट इज अ स्केलर, इट हैविंग द नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट इज जूल एंड द CGS यूनिट इज अर्क। सेम जैसा वर्क का है सेम वैसा ही इसका रहेगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी, यस, काइनेटिक एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, और उसके फॉर्म कौन कौन से है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, yes, there are number of forms of that energy. Firstly we have to see the kinetic energy, the energy possessed by the body by or due to its position की वजह से जो एनर्जी possessed हो रही है उसको बोलेंगे हम kinetic energy। तो उसका एग्जांपल क्या लेंगे हम, क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो मोशन कैसे होगा, द फ्लोइंग ऑफ वाटर थ्रू दी टैप से क्या हो रहा है, मतलब टैप अगर हमने ओपन किया तो वाटर आता है, ठीक है, मीन्स फ्लोइंग वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम दी हायर इलिवेशन टू दैट लोअर इलिवेशन, इट इज द एग्जांपल ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी। और कौन सा, देखो, मूविंग द व्हीकल ऑन दी रोड, मूव हो रहा है मीन्स पोजीशन चेंज हो रही है, वो व्हीकल की जो एनर्जी है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। यस, कंसिडर दैट ब्लॉक विथ वर्क डन 0, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ वर्क रहेगा। ओके, क्यों रहेगा वर्क, उसकी वेलोसिटी है इसलिए, तो वो जो है ब्लॉक इट डिस्प्लेस सम डिस्प्लेसमेंट और सम डिस्टेंस इज s, देन v स्क्वायर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर u टू as। अब ये क्या इक्वेशन है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो इनिशियली वो रेस्ट कंडीशन में है इसलिए u क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो s क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज w इक्वल टू f इंटू s, देन क्या आएगा, f क्या है, इट इज अ inertia force ma into v square divided by 2a, then w क्या आ जाएगा, 1/2 mv square, then according to the definition of the energy, yes, kinetic energy is nothing but the work done, तो work done क्या है, it is 1/2 mv square, तो kinetic energy क्या आई, 1/2 mv square। तो यहाँ पे m क्या है, इनिशियल u क्या है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। m इज द मास ऑफ द बॉडी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, f इज द फोर्स, a इज द एक्सेलरेशन,
v is the final velocity and s is the distance traveled that body. use the equation of that motion. हमने equation of motion use किया है, उससे क्या आया, ये जो v square मैंने बोला था, v square divided by 2a, वो उस इक्वेशन से आया. Next we have to see the potential energy. The energy possessed by body at its rest or equilibrium position is called the potential energy. It is related to rest, means it is related to its weight only, body का weight. तो body का weight क्या आता है, mg, और अगर height है तो h, mg h. Next we have to see work energy principle. क्या है work energy principle? Work done by the system of force acting on the body during the displacement is equal to the change in kinetic energy during the same displacement. तो work energy principle means what? Work और energy equal है, बस इतना है. तो work क्या है, मतलब work कैसे होगा, having some displacement. तो energy कौन सी, kinetic energy. तो वो दोनों भी work and energy it is equal to each other, वो रहा work energy प्रिंसिपल. तो वर्क क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मैंने आर क्यों लिया, फोर्स का जो रिजल्ट है इसलिए मैंने वो आर लिया, आर इंटू एस, एस इज नथिंग बट दी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसा होगा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से, इसलिए मैंने 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. u इज नथिंग बट दी initial velocity and v is nothing but the final velocity, m is nothing but the mass. Okay, then we are taking the common 1/2 m, then in bracket v square minus u square. तो what is in the m? m is the mass. तो mass कैसे find out करेंगे हम, weight divided by acceleration due to gravity. तो 1/2 w by g v square minus u